السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور آج پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی محترم جناب فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں تو یقین مانیے کسی پریس کانفرنس کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ خاص طور پہ حسب حال پروگرام اور سوشل میڈیا انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کام چک کے رکھے ہیں۔ صاحب آپ کی محبت کہ آپ اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کے ہمارے لیے تشریف لائے ہیں خاص طور پہ، ورنہ فواد صاحب کے پاس تو آج کل ٹائم ہی نہیں ہے، سارا دن مختلف سائنس لیبز میں گزر رہتے ہیں۔ بات آپ کی جنید صاحب 100% ٹھیک ہے، مگر آپ کی محبت کھینچ لاتی ہے مجھے۔ دیکھیں اگر لیبارٹریوں میں گھسا رہتا ہوں، لیب میں گھسا رہتا ہوں، تو اس کا پھر رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جنید صاحب امریکہ کس کا نام ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام امریکہ ہے، مگر امریکہ کو پڑھتو پڑ گیا ہوا ہے۔ کیا پڑھ گیا؟ پڑھتو ایک تو پنڈ میں لڑائی ہو پڑے تو پڑھتو پڑ جاتا ہے، ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا پڑھتو ہوتا ہے۔ یہ آپ تو ماشاءاللہ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے BSc کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس کے بعد آپ نے جرنلزم کیا۔ آپ نے تو کیمسٹری کی لیب میں دیکھا ہوگا جب H2SO4 اور سلفیورک ایسڈ کو ملائیں تو وہ شیشے کی سرائی میں کیا پڑھتو پڑ گیا، اس کو پڑھتو کہتے ہیں۔ جنید صاحب یہ سائنس کی ایک صنف ہے۔ صنف ہے، وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ H2SO4 سلفیورک ایسڈ کو کہتے ہیں۔ جنید صاحب آپ کے یہ ساتھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ نوٹ بک اور پینسلیں پکڑی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھ لیں H2SO4 کہاں اور سلفیورک ایسڈ کہاں۔ سر مجھے تو نہیں پتا، میں تو H1 میں رہتا ہوں۔ کیا بش ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے معاف کرنا چودھری صاحب، میرا ذہن پڑھتوتے ہی پھنسیا ہے۔ دیکھیں جنید صاحب یہ ہے تبدیلی، آپ دیکھیں کہ ان جیسے لوگوں کا بھی ذہن ہے تو پھنسا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھتو پہ پھنسا ہوا ہے۔ ویسے جیسے میرے خیال میں پڑھتو اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کو اس وقت پڑھا تھا جب آپ کی وزارت فردوس عاشق اعوان کو دے دی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پڑھتو پڑا، اس وزارت کو پڑھتو پڑ گیا۔ دیکھیں نا، میں تو جنید صاحب ایک ورکر ہوں، میں نے تو محنت کرنی ہے، میں نے تو اپنے کپتان کی بات سننی ہے، میں نے تو عوام کی خدمت کرنی ہے۔ مجھے آپ کوئی بھی سیٹ دے دیں جنید صاحب، مجھے بے شک گرم امام پہ جا کے حجامت والی سیٹ دے دیں، میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو خدمت کرنی ہے۔ اچھا سر، سائنس کے حوالے سے ایک آپ سے سوال ہے، اے اللہ نہ کرے نہر دا بن ٹوٹ جائے تے پنڈ چ جڑی بھجنس ہوندی ہے وہ بھی پڑھتو دے زمرے جاندی ہے۔ دیکھیں آپ میرا خیال ہے اس کو ایزی لے رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسا موضوع ہے۔ جنید صاحب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا، خاص طور پہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ترقی کرنے والے ملک ہیں انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بیس پہ ہی ترقی کی۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی یہ سفر شروع ہونے والا ہے نا۔ ہو گیا جی، ہونے والا کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا، جی گاڑی چل پڑی۔ جنید صاحب ناسا پہلے تو بنایا ہے نا یہاں پہ، تو یہاں تو ناسا ہی نہیں تھا۔ ناسا پاکستان میں بن گیا؟ جی اور دیکھیں ایک پیسہ نہیں لگنے دیا۔ یہ کیسے ہو گئے؟ یہ تو ہمارے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ جی میں یہ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ ناسا کا وجود یہاں پاکستان میں بھی۔ صاحب ایک منٹ دیکھ لیں ذرا، سوچ سمجھ کے اتنی بڑی خبر بریک کیجئے گا۔ پہلے وہ تیل والی خبر بھی آئی تھی، پھر مایوسی پھیلی تھی، تو اگر آج آپ بریک کرنے لگے ہیں تو پلیز ذرا سوچ سمجھ۔ دیکھیں جنید صاحب، اللہ کے فضل سے فواد چودھری جو بات کرے گا 100% اتھینٹک کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناسا پاکستان میں بن رہا ہے؟ پاکستان میں بن رہا ہے اور ایک پیسہ نہیں لگنے دیا جنید صاحب۔ کیسے؟ ہمارے پاس ایک بیکار سا محکمہ تھا واسا، اس کا میں نے W اٹھا کے ادھر N لگا دیا، واسا کا میں نے بنا دیا ناسا۔ اچھا
अब देखिएगा कि किस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की होती है। चौधरी साहब वासा कैसे नासा लगेगा? देखिए, एक तो एन लगा दिया है ना W की जगह, और दूसरा दफ्तर के अंदर जब आप घुसेंगे तो सब बड़ी बड़ी नासों वाले अफसर भर्ती करेंगे। हर एक की नासों के ऊपर आपकी नजर पड़ेगी तो आप कहेंगे कि ये नासा है। सर ये साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जुल्म और ज्यादती है। क्यों जी? सर ईद सर पे है, वासा वाले तनख्वाह लेने जाएंगे, आगे नासा लिखा होगा, वो कहां से लेंगे? देखें, ये अब छोटी छोटी तकलीफें तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये तो हमारे वजीर आज़म पहले भी कह चुके हैं कि आवाम को मुश्किलात का सामना है, हम मानते हैं। हाँ जी। और इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आप तरक्की की राह पे जाना चाहते हैं। चौधरी साहब, आप अमेरिका का प्राइड यानी नासा उनका उठा के ले हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं, वो ट्रम्प आराम से बैठा रहा है। नहीं जी, सोटी पकड़ के मेरे पीछे भागा है, ये गुजरहां तक मेरे पीछे आया है, मैं फटाफट पिंडी घुस गया। फैजाबाद चौक से मैं मेट्रो के साथ लटक गया हूँ, पीछे से बात दुआएं देता रहा, जा बे फैजा आएगी। चौधरी साहब, ट्रम्प आपके पीछे भागा है? जी हाँ, और ऐसे भागा है जैसे किसी बुजुर्ग को छेड़े ना, बाबा टाइम की होया है तो वो पीछे भागता है, इस तरह भागा है मेरे पीछे। मगर मैं अल्लाह के फजल से ट्रम्प के हाथ आने वाला नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की की राह पे गामदन करके छोड़ूंगा। वाह जी वाह, चौधरी साहब अल्लाह मियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਫੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गौरी साहब, ये तो आप ज्यादा लिफ्ट ले रहे हैं, आप जैसे बंदे को कहना चाहिए कि मुझे वर्कशॉप का फेरा जरूर लवाना है। चौधरी, चांद को अगर बर वक्त इतला हो गई ना गौरी साहब के आने की तो चांद में सूरज पे जाने का प्रोग्राम। जुनैद साहब, सूरज चांद की तरफ आएगा, चांद सूरज की तरफ जाएगा। सारे सफर इंशाल्लाह मैंने रेलवे के वजीर जो शेख रशीद साहब हैं उनसे बात कर ली है। रेलगाड़ियां भी फजा में इंशाल्लाह चलेंगी। चौधरी साहब, अब चांद के मामले में भी आपकी चलने लग गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ईद भी कोई मंगल बुध के अलावा तो किसी दिन करवा दें। क्यों जी? और सर, मंगल बुध को गोश्त का नागा होता है और मैंने गोश्त ईद के ईद ही खाना होता है। पिंडा तेरा ते दस दस रोज खाना है, सदके वाला भी खा लेना, टीके वाला भी खा लेना, चील वाला भी खा लेना, बनेरे ते पिया भी खा लेना, हमसाया दा भी खा लेना। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। और शक ना पड़े, आहिस्ते आहिस्ते म्याऊं म्याऊं भी करता रहता है। और सर जी छोड़े ये साइंस और टेक्नोलॉजी को, देखे ना महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, हमारे बिल नहीं दार, गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, हांडी पकाने को हम लोग तरसे हुए हैं। छोड़ दें, हर चीज आप भूल जाएं। इंशाल्लाह साइंस और टेक्नोलॉजी से अगर मैं सारा मुल्क ना ठीक कर दूंगा तो आप मुझे कहिए। यार, आप गैस की बात करते हैं, गैस तो जुनैद साहब हर गरीब आदमी ने हंडिया पकानी होती है, और सबसे पहले मैं समझता हूँ इसकी तरफ आना चाहिए। जबरदस्त। अब भूल जाएं आप कि कहां से गैस आएगी, कैसे निकलेगी, ये कतर वतर, ये वो सब आपको देखा आपने, अजीब अजीब फ्रॉड निकल आए। हाँ, स्कैंडल बन गए। भूल जाएं ये सब स्कैंडल, सब आबाजार लोग हैं। तो यहाँ लोकली कहीं से एक्सप्लोर कर रहे साहब, बेपनाह गैस यही जाया हो रही है। अच्छा जी, यहाँ सा ओ यार कोई तीली ना जला दे यार। या अल्लाह खैर। नहीं, आप घबराएं नहीं, मैं अभी यहाँ आपको साबित करता हूँ कि कितनी गैस है इस मुल्क के अंदर। आप हर दूसरे आदमी को देखते हैं वो 7 अप खोल के उसमें नमक डाल के सारी गैस जाया कर देता है। बहुत कम लोग हैं जुनैद साहब जो नमक डालते ही फौरन मुंह को लगा लेते हैं, वरना तो सांस रुक जाती है लोगों की। भाई आप क्यों उसमें नमक डाल के गैस जाया कर रहे हैं? इंशाल्लाह जुनैद साहब 7 अप की गैस से हंडिया पका करेगी। बड़ी आसान सी साइंस है, एक बोतल लगेगी एक हांडी को। हाँ, करेले गोश्त जरा ज्यादा भूनने पड़ते हैं, उसको 2 बोतलें लगेगी। नहीं, और सर फायदा ये होगा कि अगर आप कढ़ाई गोश्त बनाएंगे 7 अप वाली गैस में तो बाद में आपको खाने के साथ 7 अप लेनी नहीं पड़ेगी, अंदर से 7 अप वही मैं कहने लगा हूं कि 7 अप की गैस से पकी हुई हांडी हाजमेदार होगी। हाँ, एक डिश है जिसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं माजरत चाहता हूँ। सिरी पाए को पूरा डाला लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिरी पाए बहुत देर से रह गई बात बिजली की। जुनैद साहब, मत बनाए बिजली, ना ही इनसे बननी है।
मगर आपका ये खादम मुल्क में से अंधेरे भी खत्म कर दे। अच्छा, तो बिजली भी साइंस और टेक्नोलॉजी का महकमा बनाएगा? और क्या, फैमिली प्लानिंग वाले बनाएंगे। जुनैद साहब, इंशाल्लाह हम करेंगे बिजली पैदा। ये आप लोग ये पहाड़ी इलाके की तरफ सफर करते हैं, जी जी आप क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे शहद की मक्खियों की फार्मिंग हो रही है, शहद बनाया जा रहा है, वो लकड़ के डब्बे रखे हुए हैं, सब कुछ बंद, फजूल, जो मर्जी कर लें, लोगों ने यही कहना है कि शहद 2 नंबर है। तो क्या जरूरत है लोगों की बातें सुनने की? बंद करेंगे शहद की मक्खियों की फार्मिंग। भाई हमें मक्खी आंख से लड़ा के जरूर आंख बंद करानी है। हम जुनैद साहब कौम की आंखें खोलने के लिए आए। हम शहद की मक्खियों की जगह जुगनू पालेंगे। व्हाट आइडिया। जी जी जुनैद साहब, इसी का नाम है फवाद चौधरी। पैकेट बनाऊंगा 5-5 जुगनुओं के। हर गरीब के घर में एक पैकेट मिलेगा। जुनैद साहब, गरीब के घर में ज्यादा से ज्यादा 3 बल्ब जलते हैं, 2 पंखे, 5 जुगनू काफी हैं एक घर के लिए। एसी की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, क्योंकि मैंने गरीब की खिदमत करनी है, अमीर की नहीं। अमीर के पास पहले ही बहुत कुछ है, वो चलाए अपना एसी बिजली पे, मैं गरीबों का बल्ब और पंखा जुगनुओं से चलाऊंगा। सॉरी सर, अच्छे से मेरी बात सुने कि जुगनुओं से बिजली तो आ जाएगी, जुगनुओं से पंखा का जुगनू इसी का है। आपको नहीं पता कि पंखा कैसे चलता है, बताए ना। आपको यही पता है कि नीचे मुन्ना सोता है। पंखा गरीब को पता है कैसे चलता है। जहाँ पंखे का नाम लिखा होता है ना पतरी के ऊपर, वो पतरी का पेज खोल के आप पतरी पीछे करें, बीच में एक कैपेसिटर होता है, वो चलाता है पंखा। अच्छा। वो कैपेसिटर निकाल के उसमें जुगनू फिट करेंगे। और आपने देखा होगा पंखे की एक आवाज आती है, आती वो कैपेसिटर आवाज निकालता है तो पंखा चलता है। तो फिर वो जुगनू जी जुगनू उधर बैठ के वो आवाज निकाले। कैपेसिटर की जगह पे जुगनू बैठ के भूखा प्यासा कितनी देर आवाज निकालेगा बेचारा? जुनैद साहब, आप क्या जुगनू को बेवकूफ समझते हैं? जुगनू को जब भूख लगेगी, जुगनू ऊपर से नीचे देखेगा, पट्टी साहब सौ गए, आराम से जुगनू निकलेगा, खा पी के वापस आ जाएगा। तो पट्टी साहब पूछेंगे नहीं कि कितों है? पट्टी साहब तो सो गए हुए हैं। पट्टी साहब सोएंगे तो जुगनू खाने पीने जाएगा। वाह चोई साहब, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर कोई जुगनू फ्यूज हो गया तो उसका मिस्त्री अवेलेबल होगा? जुनैद साहब, ये बच्चा मुझसे जॉब लेना चाहता है, क्योंकि इस सारे मजमे में जुगनू का मिस्त्री सिर्फ यही लगा। ये जुगनू के अंदर जाके उसका फ्यूज चेंज कर सकता है। बेटे कल दफ्तर आ जाना। नाज़रीन, इन खूबसूरत आइडियाज के साथ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दूसरी तरफ लोग हैं, कंपनीज हैं, माफियाज हैं, मनी एक्सचेंजर्स हैं, कुछ सियासी जमातें भी हैं, अच्छा। कुछ बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, और वो सारे मिल के इस बात पे बाकायदा रात को बैठ के खुशी का इजहार करते हैं कि जनाब आज डॉलर इतना चढ़ गया, डॉलर इतना हो गया। भाईजान, मैं आज एक खास हवाले से 3 कौमों के रवैये का जिक्र करना चाहता हूँ, इसलिए कि हम बहुत इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं बसा औकात कि जी हम बहुत मुहिब्बे वतन कौम है। हम बस ये कौम, हमारी हुब्बुल वतनी जो है वो अरूज पे है, और हमने बहुत सारी मिसालें भी ढूंढ के रखी हुई हैं कि जी फ़लाँ जंग जब लगी थी तो यहाँ के अवाम ने सर पे देगे उठा के फ़ौज को पहुँचाई थी, ये किया था, वो किया था, पता नहीं किस हम पता नहीं क्या क्या हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान किसी भी कौम के हवाले से 3 मरहले आए जब किसी कौम की बहसियत कौम अवाम उसकी हुब्बुल वतनी का इम्तिहान आया। ताज़ा तरीन चीन और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई लड़ी जा रही है आजकल, वो पता है किस चीज़ पे लड़ी जा रही है? किस चीज़ पे? किस पे? मोबाइल। मोबाइल पे। ठीक है जी।
آپ کو نام سنا ہوگا آپ نے چینی کمپنی کا ہواوے. ہاں جی اس کو ویسے ہواوے کہا جاتا ہے لیکن اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہواوے ہے. ہواوے. ادھر تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہواوے نہ ہواوے. اب یہ چائنیز کمپنی ہے ہواوے جو ہے. ہواوے نے اتنا وہ کامیاب فون ثابت ہوئے ہے کہ اس نے لاسٹ ایئر 2018 میں اس نے آئی فون کو سیل میں پیچھے چھوڑ دیا. یہ ناقابل یقین بات تھی اور امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ چائنیز کمپنی کل کی بچی, کہتے ہیں کل دا بچہ, وہ کل کی بچی کمپنی اور اس نے آئی فون کو پیچھے چھوڑ دیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہواوے کمپنی جو تھی اس نے اپنی ترقی کا سفر اتنی تیزی سے طے کیا کہ اس نے امریکیوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. اچھا. اب جو ایک اس کے لیے تلخ حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ دوسری طرف بہرحال آئی فون بھی آئی فون تھا. اب اگر دنیا میں 100 آئی فون بنتا ہے تو اس میں سے 33 آئی فون جو ہے وہ چائنیز استعمال کرتے ہیں. چائنیز بھی بڑے باہر ہیں, بہت بڑی آبادی تھی اس کی وجہ سے. اب ہوا یہ ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ جو ہواوے کی جو خاتون سربراہ تھی اس کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا گیا ایک عجیب و غریب الزام لگا کے. ایک کرائم ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا ہے, فلاں ضابطے کی خلاف ورزی کے, جو بڑے ملک آج تک کرتے آئے ہیں چھوٹے ملکوں کے ساتھ یا دیگر کمپنیز کے ساتھ, اس کو گرفتار کر لیا. اگلا سٹیپ یہ کیا کہ گوگل اور اینڈرائڈ ایک ہی کمپنی, انہوں نے اینڈرائڈ نے اپنا جو پروگرام ہے, اپنا اینڈرائڈ جو ہے وہ ہواوے کو دینے سے انکار کر دیا. یعنی کمپنی بند کرنے والی بات ہوگی نا. تو ایک طرح اس نے کہا جی ہم نہیں دیتے, آپ کو جو مرضی کرو, چلو جی ختم. اب ایک تو چین نے اعلان کیا کہ آپ دیتے ہیں, آپ اپنا اینڈرائڈ اپنے پاس رکھیں, ہم خود ڈیولپ کریں گے اور ہواوے خود اس کا اینڈرائڈ اپنا بنا کے تو بیچیں. لیکن دوسری طرف آپ چینی قوم کا, چینی کمپنیز کا, چینی گورنمنٹ کا رویہ ذرا دیکھیں, حب الوطنی ذرا چیک کریں کہ چائنا کی جو عوام ہے انہوں نے اٹھا کے پھینکے ہیں آئی فون جا کے, اور انہوں نے ہواوے خریدنے شروع کر دیے. نمبر 1, لاؤ ادھر اپنا آئی فون پھینکے. میرا آئی فون ہے, میرا آئی فون میں چینی ہوں, دور سے پھینے لگ رہے. اچھا یہ تو تھا چائنیز پبلک کا ری ایکشن یا حب الوطنی. دوسری طرف کئی چائنیز کمپنیز نے یہ اعلان کر دیا کہ جو ان کا ملازم جو ہے وہ ہواوے خریدے گا اس کو 20% لون ہم دیں گے. اگر 100 روپے میں خریدے گا تو 20 روپے ہم دیں گے, لون نہیں سوری ہم ایڈ دیں گے, 20 روپے دیں گے ہم اس کو, 80 روپے میں اس کو پڑے گا. اور اگر کوئی بندہ آئی فون خریدے گا تو اس کا بونس بھی کٹے گا اور تنخواہ بھی کاٹ لی جائے گی. اب تم دیکھو کہ اگر چائنیز نے اس درجے پہ جا کے, اس نہج تک جا کے اپنی حب الوطنی کا اظہار کیا ہے تو امریکہ کے لیے بھی تو ایک مشکل مسئلہ ہے نا کہ وہ اس کو کس طرح نپٹے گا. 33% ان کے جو آئی فون ہیں وہ وہاں پہ فروخت ہو رہے ہیں, وہ اب کیسے اس سے نپٹتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی اور امریکہ کی بھی لڑائی شروع ہوئی تھی جب اس نے جان بوجھ کے ترکی لیرا کو گرانے کی کوشش کی تھی, اور اس وقت سے لے کر اس کے غالباً کچھ عرصے بعد تک یہ بتا دو ان کو کہ لیرا ترکی کا پیسہ ہے, کرنسی کا نام. سمجھو کہ جو لیر ہوتی ہے کپڑے کی وہ ذرا بڑی ہو جائے تو لیرا ہو جاتا. یہ اپنے تھیلا صاحب ایئرپورٹ پہ چلے گئے تھے, کہتے ہیں آپ کے پاس ترکی کی کرنسی ہے, اس نے لیرے نکال کے کسی درجی دی دکان تو پان چوک کے لے اسے کہا یہ تو مفت ہے. نہیں یار سیریسلی میں تو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی اسی طرح ہوا تھا کہ انہوں نے امریکن ڈالر کے مقابلے پہ انہوں نے اپنا جو لیرا تھا اتنا گرانا شروع کر دیا کہ یعنی ٹرکش گورنمنٹ ایک دفعہ ہل کے رہ گئی تھی. تو ہوا کیا کہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ اس مشکل وقت میں قوم ہمارے کام آئے, اپنے آگے کھڑے ہو اور سامنے حکومت سے آگے کھڑے ہو. تو لوگوں نے ڈالر
बाकायदा फेंकने शुरू कर दिए थे और लिरा खरीदने शुरू कर दिए थे कि डॉलर बेचे लिरा खरीदे। और देखते ही देखते वहां की जो करेंसी थी वो 3 या 4 माह के अंदर अंदर संभल गई थी। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों पे बड़ी बड़ी जितनी लग्जरी आइटम्स थी उनकी इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी थी, जो खास तौर पे अमेरिका से आ रही थी। और अमेरिका को भी खासी तकलीफ हुई थी क्योंकि अमेरिका के लिए टर्किश जो एक मार्केट थी वो भी एक बड़ी मार्केट है, उसके लिए भी आसान काम नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपने लिरा को इतना सपोर्ट किया कि वो जंग जो है वो बराबर बराबर ही खत्म हो गई। अब हम आते हैं पाकिस्तानी अवाम पे। जी पिछले 1-1.5 माह के दौरान जिस तरह लोगों ने डॉलर खरीदा है, बार बार सोशल मीडिया पे पूरी एक कैंपेन शुरू हुई है कि डॉलर बजाय खरीदने के डॉलर बेचें, डॉलर को स्टोर ना करें, मतलब इसकी जखीरा अंदोजी ना करें। मौलाना तारक जमील साहब का, मौलाना तकी उस्मानी साहब का फतवा मौजूद है कि ये एक तरह से इस वक्त डॉलर आप खरीद रहे हैं, इससे जो आपकी कमाई होगी वो हलाल की नहीं, वो हराम की कमाई है। यहाँ तक फतवा दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग हैं, कंपनीज हैं, माफियाज हैं, मनी एक्सचेंजर्स हैं, कुछ सियासी जमातें भी हैं, कुछ बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, और वो सारे मिल के इस बात पे बाकायदा रात को बैठ के खुशी का इजहार करते हैं कि जनाब आज डॉलर इतना चढ़ गया, डॉलर इतना चढ़ गया। और ये जो सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पे भी एक कैंपेन चली है कि डॉलर आप मार्केट में फ्लोट करें, दें, डॉलर बेचें और पाकिस्तानी रुपया खरीदें, उसका टका बराबर भी असर नहीं हुआ, टका बराबर भी असर नहीं हुआ। और फिर हम कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम हुब्बुल वतन कौम है। भाई कैसे हैं? जब भी कौम को जरूरत पड़ती है टोकरी थल्ले सोटी लगा के बैठे होते हैं चिड़ी फड़ रहे हैं पकड़ने के लिए। या तो इस तरह की सिचुएशन में लोग वाकई बहुत बदीद हो जाते हैं और ये यही मौका समझते हैं कि अमीर हो जाएंगे। धड़ाधड़ डॉलर खरीद के पाउंड का वजन अपना रेट बढ़ना शुरू हो, वो खरीद के रख लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम 2, 3, 4, 5 हफ्तों में ही यकीन जानो कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज सस्ते दामों बेच के डॉलर खरीदे इन दिनों में, सस्ते दामों प्रॉपर्टीज बेच दी हैं और डॉलर्स खरीदने शुरू कर दें। अच्छा, इसमें हमारे मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि जैसे मीडिया पे चंद एंकर्स बैठ के अगर कुछ अर्सा पहले ये कह दे, मतलब कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि जी डॉलर 170 पे चला जाएगा, वो चला जाता है। जब एक टीवी पे एक जिम्मेदार एंकर बैठ के कह रहा होता, दूसरी तरफ अगर 4 एंकर्स बैठ के ये कह देते हैं कि डॉलर जो है ये अगले 2 माह बाद 100 रुपए पे वापस चला जाएगा, तो लोग धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। नहीं, वैसे माफ करना, मीडिया वालों ने भी कहा और खुद असद उमर साहब ने भी कहा है, मैंने खुद सुना था, उन्होंने भी कहा डॉलर अभी ऊपर जाएगा। हाँ, नहीं इस तरह की लूज टॉक हो जाए तो कौम इस तरह की है। देखो, इनको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई मुहिब्बुल वतनी नहीं है इधर। सर जी इसके पास डॉलर है थैले के पास, यार बेचो यार डॉलर, मुहब्बे वतन बनो यार थैले। ओ भाई मेरे पास सिर्फ $1 है। ये पिछले दिनों मेरे कजन आया था अमेरिका से सर, वो यहाँ आके मेरा शलवार कमीज पहनता था, जब वो वापस गया अपनी पैंट शर्ट पहन गया, उसकी जेब में से ना ये $1 निकला है जी मेरे। $1 निकला नहीं था, तो $1 निकाला था उसने। सही बात। और प्रॉब्लम दूसरी ये है कि उधर डिगिया ने तेने उते पैर रहा। और दूसरी बात ये है कि जो डॉलर इसके कजन की जेब से निकला था ना, उसमें जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर तो है, लेकिन उसने जनाब क्या पहनी हुई, यानी देसी डॉलर है ना। दुनिया में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीजी मैंने ईद पे ना शलवार कमीज सिलने के लिए दिया, तो मैंने कहा कॉलर लगा दो, तो उन्होंने बैन लगा दिया। अच्छा, मैंने जाके लड़ाई की, मैंने कहा मैंने कवाली करनी है, बैन लगा दिया। उन्होंने कपड़े को नहीं, उन्होंने तुम्हारे दुकान में दाखिल होने पर बैन लगा। अच्छा जी, याद माजी के हवाले से चंद चीजें आपको याद कराता हूं। वैसे तो एक आध दफा हमने ये पहले भी डिस्कस किया है किसी और टॉपिक में। जी। ईद जब नजदीक आती है ना, हाँ जी, तो ये तड़फ जाता है। हाय क्यों हाय, सर? वो क्यों? हाय 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 हाय, कहाँ गए वो ईद कांटों वाले फटे? कैसे हर मार्केट में लगे होते थे ऐसे चादर ऊपर बिछा के फटा, दही वाले कूंडे चौके होते तो चादर बिछा के काट ला ले, एडी सोहनी काटा ते मलाई आई हुंदी सी। नहीं
सीरियसली इतना मजेदार कार्ड होता था, बीच में ऐसे खोलने से वो हिलता भी था, तस्वीरें। ये तुम्हारी वजह से बात ठीक है, मैंने भी नोट किया है कि वो दही कुंडों वाले ना वो उन्हीं फट्टों पे लगे होते थे, क्योंकि उसमें तो आम तौर पे फिल्म एक्ट्रेसेस के जो होते थे ना वो कार्ड होते थे। यार वाकई मान से इस तरह के फटों के ऊपर ही वो लगे होते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ईद कार्ड वन सवन्ने ऐसा खूबसूरत ईद कार्ड, और बड़ा बड़ा महंगा भी होता है। जी सर बिल्कुल। सारे लोग, चूंकि ये मोबाइल फोन नहीं था भी आया, अब तो SMS कर देते हैं आप 300-400 बंदे को बैठ के। इस जैसे बंदे जो हैं ज्यादा वाकफियत वाले, ये तो सैकड़ों में ही मैसेज करते हैं ना। तो हम लोग भी 15-20 जो दोस्त अहबाब होते हैं उनको मैसेज कर देते हैं, जबकि उस वक्त 4-5-6 ईद कार्ड ज्यादा से ज्यादा वो ला के बड़े प्यार से लिखने, उन पे फूल बूटे बनाने, फिर उनको बंद करके लिफाफे में तो पोस्ट करने जाना, उसके ऊपर टिकट भी लगानी। एक और चीज जो अब नजर नहीं आती, वो होते थे दर्जियों के नखरे। अब भी हैं छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में दर्जी जो हैं वही सीते हैं कपड़े ईद के। बड़े शहरों में तो तकरीबन ये काम खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि रेडीमेड सस्ता मिल जाता है और दर्जी से सिलाया हुआ महंगा मिलता है। लो जनाब, दर्जी के पास जो बुकिंग होती थी ना, वो 1.5-2 महीने पहले शुरू हो जाती, बल्कि एक दूसरे को कहना शुरू कर देते थे कपड़े दे दिए सिलने के लिए। तो वो जाके सूट दर्जी को बुक करा के आते थे कि भाई जी मेरा सी देना ये पहले सीने। और जो दर्जी होते थे वो भी बेचारे एक आध दिन पहले जो किसी के कपड़े रह जाते सन तो बाहर लेके ना कार्ड पे दादी अम्मा की फौतगी की वजह से दुकान बंद है, दौड़ जाते थे। और बड़ी लड़ाइयां झगड़े होते थे। और खवातीन जो हैं ये भी चूंकि कपड़े सिलवाती थी से, अब तो 29 ब्रांड निकल आए, वन सवन्ने और सिले सिलाए कपड़े खवातीन भी हमारी बहनें माएँ बेटियां खरीद लेती हैं। उस वक्त हर मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई खातून कपड़े सीती थी लड़कियों के, खवातीन के कपड़े। वो मोहल्ले में कोई ना कोई लाइमन खातून होती थी जो कपड़े सीती थी। हमारे मोहल्ले में भी खाला सकीना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, आज तक हमें याद है। वो बड़ी प्यारी होती थी, वो घर की मेंबर समझी जाती थी। उनके साथ बड़े लाड प्यार, बकायदा लड़ाई झगड़े हो रहे की होता था, मगर वो ऐसे ही होता था घरेलू सा माहौल कि मैंने कपड़े लेके जाने थे, मैंने शादी पे जाना था, आपने सिए नहीं। अच्छा, आखिर वक्त में जाके जब मतलब कपड़े मिलते थे उसमें कोई नुक्स निकल आता था तो फिर ये स्यापा पड़ जाता था कि एक दिन रह गया, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूंगी। हाँ जी, फिर पास से अम्मी मशवरा देती थी कि गोगे पुत्र शाम वाली रोटी ना खा तो कमीज पूरी आ जाएगी। जी मैंने ईद पे ना सलवार कमीज सिलने के लिए दिया, तो मैंने कहा कॉलर लगा दो, तो उन्होंने बैंड लगा दिया। मैंने जाके लड़ाई की, मैंने कहा मैंने कवाली करनी है, बैंड लगा दिया। उन्होंने कपड़े को नहीं, उन्होंने तुम्हारे दुकान में दाखिल होने पर बैन लगाया। उन्होंने कहा खबरदार इधर ना बढ़िया को। अच्छा, एक और बात बड़ी याद आती है मुझे ईद के नजदीक कि ईदगाह होती थी, ईद मेले लगते थे जरूर। ईद की नमाज पढ़ के सारे घर वाले आते थे, तो बच्चों की कोशिश होती थी कि दादा अबू नानी अम्मा अबू अम्मी से फटाफट ईदी लें और नाच जाए ईदगाह पे। तो जाके कुबले अंडा खा के नाल स्क्रीन वाला बर्फ वाला गोला चूस के लाहौर कराची पिशौर वाले भगूड़े ते बह के अपने आप को चक्कर चढ़ा के बुखार चढ़ा ले। देखो ना जरा पैसे खर्च के बीमार होंगे सर। अच्छा अजीजी, ईद वाले दिन सिनेमा में फिल्म देखने का बड़ा शौक होता था। मैंने तो एक ही दिन में 4 फिल्में देखी। अरे तुमने देखी होंगे चारों शो। ये सैंडमे में बड़े कीमे वाली छोटी टिक्कियां बेचता। अजीजी ये थैला 4-4 शो वेंदा रहा फिल्म दे, तदे डांस एडा पक्का करता है। ये थैला तो कई दफा सिनेमे पैसे नहीं भी तो होते तो चला जाता। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, दरवाजे के पास खड़ा रहता था कि शायद अंदर जेड़े पे फिल्म वेंदे ने उन्हें जो किसी ने फोन आ जाए कि अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई है, फटाफट कार आ जाए। उसका फिर कह देता भाई जी ताड़ी तो टिकट ही आया ही जानी है, मैंने दे दी। एक दफा वाकई किसी की डेथ हो गई, वो बाहर जाने लगे, कहता जी आपके अब्बू की तो डेथ हो गई है, टिकट मुझे दे दे। उसने कहा जी मैं टिकट फाड़ दूंगा, तो मैं नहीं दूंगा। हाँ हाँ, कई बारी तो ये एक टिकट लेते थे, 2 भाई थे, अद्धी फिल्म एक भरा वेंदा सी, अद्धी दूजा वेंदा सी। जाके दी वो स्टोरी सुनाता सी, अद्धी वो सुनाता। हाँ जी,
اچھا ایک اور بڑی مزیدار بات آپ کو یاد کراؤں, جو عیدی دینے والے بزرگ ہوتے تھے نا, اس کے متعلق ایویں گھر میں بچے گفتگو کرتے تھے کہ چاچا صدیق نہیں آئے. پاسے کو بتا دیتا تھا, اگر وڈی عید ہوتی تھی تو پاسے کو کہہ دیتا تھا کہ وہ حج کرنے گئے ہوئے, تو بجائے خوش ہونے کے غصہ چڑھ جانا کہ چاچا کیوں حج پہ گئے. پوچھتے تھے عیدی تو دے کے گئے ہوں گے کسی نہ کسی کو. ہاں جی چاچی کو فون کر دینا کہ چچی چاچا صدیق حج کرنے گئے ہوئے ہیں, مبارک ہو, اور وہ جاتے ہوئے ہماری عیدی نہیں دے کے گئے. چاچی کہتی ہے دے کے گئے لیکن اسی عیدی کا میں نے بکرا خرید لیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, آج ہم عبد الباسط صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت نعت سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم جناب نواز انجم صاحب کے پاس. ماشاءاللہ. حشمت جاوداں ہاشمی ہاشمی سولت مرسلاں خاتمی خاتمی حشمت جاوداں خلوت ماورا جلوت دوسرا. بہت خوبصورت. فرعرش و ہیرا روشنی روشنی حشمت جاوداں ہاشمی ہاشمی. ماشاءاللہ. آکلے آکلاں کاملے کاملاں حکمت حق نشان آگہی آگہی. حشمت جاوداں ہاشمی ہاشمی. سبحان اللہ. شوکت زندگی رفت بندگی دم بدم دم بدم برتری برتری حشمت جاوداں ہاشمی ہاشمی. ماشاءاللہ. دامن تر لیے چشم پر نم لیے بے بسی ہے میری ملتجی ملتجی. حشمت جاوداں ہاشمی ہاشمی. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہد شاہداں مہوش مہوشاں راحت عاشقاں دلبری دلبری. حشمت جاوداں ہاشمی ہاشمی. صاحب ذی حشم
मेरा रखियो भरम आबोता बेहरम दायमी दायमी हश्मते जावदा हाशमी हाशमी माशाल्लाह। बसते जहाँ बलब नजर रंजो ताब तालिबे यक नजर या नबी या नबी हश्मते जावदा हाशमी हाशमी सोलते मुरसला खातमी खातमी हश्मते जावदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.